When the world has broken us down, जब दुनिया ने हमको तोड़ कर रख दिया है, the Lord's love sets us free. परमेश्वर का प्रेम हमको आजाद कर देता है। Shalom. शालोम। We welcome you to this devotion in the name of इस Jesus. डिवोशनल में आपका स्वागत है मसीह यीशु के We नाम all are aware that we are in a series which is titled as Setting Captives Free. से। हम सभी जानते हैं कि हम सीरीज में हैं जिसका शीर्षक है बंदियों को आजाद This करना। is just a two-part series, ये केवल 2 भागों में होगा। wherein yesterday we saw the part कल 1, हमने पहले भाग को देखा and we saw a very important fact there. और वहाँ पे एक बहुत ही जरूरी हकीकत को हमने देखा, How Israelites were under the bondage, कैसे इजरायली लोग बंधन में थे। not for 1-2 years, but for 400 good years. 1-2 साल के लिए नहीं, लेकिन 400 साल के लिए। When their bondage became too bitter, जब उनका बंधन बहुत ही सख्त हो गया, oppression of the Egyptians increased. मिस्र वासियों का जो दबाव है जब बढ़ गया, The word of God says in Exodus chapter 3 verse 8, वचन में लिखा हुआ है निर्गमन की किताब 3 अध्याय 8वां वाक्य, the Lord says that I have come down परमेश्वर वहाँ पे कहते हैं कि मैं नीचे उतर आया हूँ to take them up, उनको निकालने के लिए, to remove them out of this oppression, और इस बंधन से निकालने के to लिए, set them free and take them to the promised land, इनको आजाद करने के लिए और उस वादे के स्थान में ले जाने के लिए, to a land flowing with milk and honey. ऐसी जगह में ले जाने के लिए जहाँ पे शहद और दूध बह रहा हो। You and I have a God who came down. आपके और मेरे परमेश्वर ऐसे हैं जो नीचे उतर कर His आए। character is still the same. उनका चरित्र ऐसा ही है। When you look unto Him, जब आप उनकी ओर देखते when you हैं, trust जब Him, उन पर भरोसा करते when you हैं, hold on to जब हम Him, उनको धरे हुए रहते He हैं, will come down into your तो situation वो आपकी स्थिति में आते हैं, उतर आते हैं, to set you free from every clutch of the enemy. शत्रु के पकड़ से, शत्रु के चंगुल से आपको आजाद करने के लिए। Somebody may want to know how we can actually implement this freedom. आप शायद ये जानना चाहोगे कि ये जो आजादी को हम कैसे पा सकते हैं। This morning, that's exactly what the Lord wants us to meditate upon. और इस सवेरे के वक्त यही चाहते हैं परमेश्वर हम इसी विषय को लेकर मनन करें। I want us to open our Bibles to Psalm 107 verse 13 and 14. हम चाहते हैं कि भजन संहिता हम देखें 107 13 और 14 वाक्य। I repeat Psalms 107 verse 13 and 14. I'm going to read for us in the NKJ version. And it says, Then they cried out to the Lord in their trouble, and He saved them out of their distress. He brought them up out of darkness and the shadow of death, and broke their chains in pieces. भजन संहिता 107 13 और 14 वाक्य। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सखेती से उनका उद्धार किया। उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। I want us to understand one thing, that God is in the business of setting the captives free. आप इस बात को समझ लीजिएगा कि परमेश्वर बंदियों को छुड़ाते हैं। Verse 13 says that they cried out. 13वें वाक्य में लिखा हुआ है कि वे लोग यहोवा की दुहाई देने लगे। It says that then they cried out to the Lord in their trouble. अपने संकट में यहोवा की दुहाई देने लगे। My brothers and my sisters, today when you cry out, number one thing, that how to get the attention of God. और देखिए, जब आप परमेश्वर के सामने रोते हैं, बिलखते हैं, परमेश्वर के ध्यान को अपनी तरफ लाने के लिए, When you cry out, you bring down His presence. जब आप परमेश्वर के सामने रोते हैं, आप उनकी उपस्थिति को ले आते हैं। Listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा। Whenever we cry, जब कभी भी हम दुहाई को देते हैं, the cry is out of a तो helplessness. क्योंकि हम कुछ कर नहीं पाते हैं, इसीलिए हम उनको पुकारते हैं। When we fail to do certain thing, जब हम चंद बातों को करने से चूक जाते हैं, when we are unable to find a solution to certain thing, जब हमको वो चीजों का पर्याय नहीं दिखता, out of that helplessness, तो हम विवश हो जाते हैं। When- हमको समझ नहीं आता क्या करना। when we are humbled within ourselves, हमारे अंदर जब हम दीन नम्र हो जाते हैं, that humility brings tears in our eyes. तो वो नम्रता और दीनता हमारी आंखों में आंसुओं को ले आती है, That brings out a cry from our heart. और उसकी वजह से हम दिल से फिर करहाने लग जाते When हैं। we cry like that, जब हम दिल से फिर रोने लग जाते when हैं, our self-dependence ends, और जब हम स्वयं पर निर्भर होना बंद कर देते हैं, that is when our God dependence begins. तब जाकर हम परमेश्वर पर निर्भर होने लग जाते How हैं। do you know that your God dependence has begun? कैसे आपको मालूम हो जाता है कि आप परमेश्वर पर निर्भर हो That रहे it हैं? comes in the form of tears, helplessness and tears, and then you lift up your voice
and cry to Him. तो ये आंसुओं के स्वरूप में आ जाता है, समझ नहीं आता कि क्या करना, फिर आप जो है परमेश्वर के सामने रोने लग जाते हैं। Listen to this carefully. Deliverance begins the moment you identify your dependence is only on God. और देखिए, छुटकारा तब शुरू होता है जब आप इस बात को पहचान लेते हैं कि आप स्वयं पर नहीं लेकिन परमेश्वर पर निर्भर हो रहे हैं। Instead of depending on your own self, अपने खुद पर निर्भर होने के बजाय hold on to God, cast your cares, as Peter said very wonderfully. और जैसे पतरस ने कहा बहुत ही सुंदर रीति से, अपने सारी चिंताओं को परमेश्वर पर डाल दो। In 1 Peter chapter 5 verse 7 he says that cast your cares upon Him that He will care for you. और पहले पतरस की किताब 5वां अध्याय 7वें वाक्य में पतरस कहते हैं कि आप अपनी चिंताओं को परमेश्वर पर डाल दो क्योंकि वो आपकी चिंता करते हैं। Listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा। You better depend upon Him. और देखिए, आप परमेश्वर पर निर्भर हो जाइएगा। Let's cry to Him. हम उनके सामने दुहाई को लगाते Let's हैं। not try to handle a problem at our own level. हम जो है समस्या को अपने लेवल पर हैंडल न करें। If there is an impending sin that is making you to feel weak within you, और पाप है और ये बार बार पाप आप कर रहे हैं और उसके वजह से आप अपने अंदर दुर्बलता महसूस कर रहे हैं। if there is a certain bondage that is holding you down, the chains are, you are being chained down rather, अगर कोई बंधन आपको पकड़े हुए है और आप जंजीरों से मानो जकड़े हुए हैं, that is when you need to cry out to God. आपको तब जो है परमेश्वर के सामने रोना है। When you cry out to जब God, आप परमेश्वर के सामने रोते हैं, you उनको पुकारते हैं, automatically bring down His presence. तो आप जो है अपने आप उनकी उपस्थिति को आपकी स्थिति में ले आते हैं। Your problem, the situation that you are in changes. और जिस स्थिति परिस्थिति में आप हो फिर वो बदल जाती है। It may not be dramatic in a moment, और ये हो सकता है कि तुरंत न हो, but listen to this. लेकिन ध्यान से सुन The लीजिएगा, Lord is at work. परमेश्वर कार्य कर रहे Your हैं, deliverance is coming. आपका छुटकारा आ रहा The है। Lord is already working in the heart of a Moses. और देखिए, परमेश्वर मूसा के हृदय में काम कर रहे The हैं। Lord is already speaking to a Moses who's getting up and coming to you to set you free from that clutch of the enemy. और परमेश्वर जो है वो मूसा से बात कर रहे हैं, जो आ रहे हैं और आपको आजाद करेंगे वो शत्रु के पकड़ से। In fact, in your case, आपके संदर्भ में the Lord has already set you free because He has sent His one and only begotten Son for you. और आपके संदर्भ में परमेश्वर ने आपको मुक्त किया है क्योंकि आपके लिए उन्होंने अपना एक लौता पुत्र भेजा हुआ है। After being set free, और आजाद होने के बाद next thing that you need to do, दूसरी बात जो आपको करना है, you need to feed your soul spiritually. और देखिए, आपने अपने प्राण को आत्मिक खुराक को खिलाना है। I repeat again, you and I, we need to feed our soul spiritually. जरूरी है कि हम अपने प्राण को आत्मिक भोजन खिलाए। I'm going to read for you from John chapter 6 verse 51. मैं आप के लिए पढ़ूंगा यूहन्ना 6 अध्याय और 51। It says, I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I shall give is my flesh, which I shall give for the life of the world. जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत की जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। That bread is nothing else but the word of God. और वो रोटी और कुछ नहीं है लेकिन परमेश्वर का वचन है। As you feed on the word of God, और जैसे आप परमेश्वर के वचन के भोजन को खाते हैं, as you meditate upon the word of और God, जैसे आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, it invariably keeps you set free from every clutch of the enemy. तो अपने आप जो है शत्रु के हर एक पकड़ से आप मुक्त बने रहते हैं। Listen to this carefully. ध्यान से सुन It's लीजिएगा। one thing to be set free, एक बात है कि आपको आजादी मिले, another thing to live in that freedom. और ये दूसरी बात होती है कि आप वो आजादी में अपने जीवन को व्यतीत करें। How to live in the freedom? You have to make it a point to meditate upon the word of God. You need to feed your spirit, you need to feed your soul with the living word. जरूरी है, अगर आप आजादी में ही रहना चाहते हैं, जरूरी है कि आप अपने प्राण को, आप अपनी आत्मा को परमेश्वर का वचन का भोजन खिलाएं। Express your feelings in prayer to God. और अपने
जो आप के भावनाएं हैं या फीलिंग्स है वो परमेश्वर को आप बताएं प्रार्थना में। Lighten your burdens by speaking out to Him and telling Him, Lord, you help me. आप अपनी बोझ को हल्का कीजिएगा, सारी बातों को परमेश्वर के सामने रख कर कि प्रभु तू मेरी मदद कर, ये कहकर। Luke 4 verse 18 says something very beautiful. लूका की किताब 4 अध्याय और 18वें वाक्य में कुछ सुंदर लिखा This हुआ is है। what Isaiah in the Old Testament wrote, और पुराने नियम में यशायाह ने ये लिखा that the Lord came to declare freedom to the ones who were captive, कि परमेश्वर जो है आजाद करने के लिए आए उन लोगों को जो बंधन में थे, to set those people free who were oppressed. और जो लोग दबाए गए हैं उनको जो है मुक्त करने के लिए आए हैं। My brothers and my sisters, you and I need to meditate upon the word of और God. देखिए जरूरी है कि हम और आप भाइयों बहनों परमेश्वर के वचन पर मनन करें। Knowledge without application is nothing. और देखिए अगर ज्ञान है, अगर आप जानते हैं, जानकारी है और उसको आप लागू नहीं करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। Freedom requires constant meditation on the word of God. और अगर आप आजादी में रहना चाहते हैं तो जरूरी है कि निरंतर परमेश्वर के वचन पर आपने मनन करना है। When you are feeding on the word, जब आप परमेश्वर के वचन की खुराक को खा रहे हैं, in the spirit you're becoming stronger and stronger and stronger. आत्मा में आप बलशील हो रहे हैं, अधिक बलशील हो रहे The हैं। more that you feed on the word, the more of the light is coming upon you. और जितना ज्यादा आप पवित्र शास्त्र का भोजन खा रहे हैं उतना ज्यादा जो है प्रकाश आप में आ रहा है। The more the light comes in, every bit of darkness must be dispelled. और जितना ज्यादा प्रकाश आपके अंदर आ रहा है उतना जो है अंधकार को वहां से हटना होगा। You know, when the darkness is gone, और जब अंधकार निकल जाता you है will also receive the wisdom to apply the word into your present तो situation. आपको वो बुद्धि मिलेगी कि आप अपने उपस्थित स्थिति में कैसे परमेश्वर के वचन को लागू कर सकते I हैं। love Psalms 1 verse 1 and 2. और मुझे भजन संहिता 1 पहला वाक्य और दूसरा वाक्य बहुत पसंद है। I'm going to read it for you. मैं आपके लिए पढ़ूंगा। It says, Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of scornful. I want us to pay attention here. It says, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He delights, the one who's righteous, the one who's blessed, delights in the Lord's law. क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। जो धन्य है वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। Do it every day. हर दिन कीजिएगा, That will keep you set free from every clutch of the enemy. जिसकी वजह से शत्रु के हर एक चंगुल से आप मुक्त और आजाद बने रह सकते You हैं। and I are called to walk in the freedom. आपको और मुझको बुलाया गया है कि हम आजादी में चले। You and I are called to live in liberty. आपको मुझको बुलाया गया है ताकि हम एक मुक्त जीवन को जिए। Don't allow the enemy to once again put you under chains. होने मत देना कि शत्रु फिर एक बार आपको जकड़ ले। Change your mind. अपने मन को बदल दीजिएगा, Change your attitudes. अपने रवैये को बदल दीजिएगा। Let the word dictate your attitudes. Let the word dictate your character. और वचन जो है आपके चरित्र को बनाए और वचन जो है आपके रवैये को सही करे। As you do that, जैसे हम ऐसा करते हैं everything about you must change in the name of Jesus. हमारे बारे में सब कुछ बदलना होगा यीशु मसीह के नाम से। You are going into the weekend. आप वीकेंड में जा रहे हैं। I want us to sit down and meditate on what the Lord has spoken just now. सप्ताह के अंत में जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप परमेश्वर के वचन पर मनन करें जो परमेश्वर ने अभी बात की हमसे। Make up your mind that you will be set free and make up your mind that you will live in that freedom. आप अपने मन को बना लीजिएगा कि आप आजाद होंगे, अपने मन को बना लीजिएगा कि आप इस आजादी में चलेंगे। Spend a little extended time in the prayer. और प्रार्थना में थोड़ा और समय बिताइएगा। The Lord will help you. परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित You रखे। have an awesome weekend. आपका सप्ताह का अंत के दिन बहुत ही सुंदर जाए। Stay blessed. आशीषित रहिएगा।